करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम ओम शांति 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 शांति। हरि हरि ओम तत्सत। तो आज समरी कौन करेगा? हाँ, मैं करूंगा स्वामी जी। अच्छा, नमस्कार। आइए आइए। With pranams to Sri Thakur, Ma, and Swami and Swami. Today's summary is based on conversations and dialogues with Swami Vivekananda. It was during 1898-99, that is almost 125 years ago. Today's topic has been divided into three parts. First is Swamiji's concept of Darwinian theory of evolution, and in contrast to what our ancient scholars believe about evolution. The second part is Swamiji's roadmap of the future mud and its rules and regulations through gift of food and service, gift of learning, and gift of knowledge. And also concept of nescience, that is delusion or maya. And the third part is about fortnightly magazine Udbodhan that started publishing in 1899. So on the first part regarding Darwinian theory, when Swamiji was visiting a zoological garden, Swamiji explains that Darwinian theory of the gradual evolution of animals, it's a Western concept based on the laws of struggle for existence, struggle for survival of the fittest, and struggle for natural selection. These were considered as the cause of elevating from a lower species to higher. It is by eliminating the other species one survives and grows, that is seen in animal kingdom. While as per ancient scholars, Patanjali and Sankhya philosophy, Swamiji believed that as per our cultural understanding, every being is a perfect soul. But the diversity in evolution. Pardon? फोटो नहीं आ रहा। Hope everybody is able to hear. Yes, I am able to hear, no difficulty. Okay. So, as per our ancient philosophy, every being is a perfect soul. But the diversity in evolution of that we see around of the soul varies due to difference in the degree of manifestation of the divinity of that soul. So a greater manifestation of the soul takes place through education and culture, through concentration and meditation, and above all, through sacrifice. The moment these obstacles are completely removed, soul manifests completely. So in the animal kingdom, it is seen that only basic instinct prevails, and evolution is by killing or destruction of others. But in human race, where there is manifestation of rationality, one finds that laws of external struggle for preserving of a gross body as seen in animal kingdom are totally reversed. The level of evolution of man is affected how much he sacrifices for the sake of others. Otherwise,
such men are just living like animals with basic instincts of sleeping, eating, progeny, and they simply undergo the rounds of births and deaths. Thus, man's struggle is largely in the internal or mental sphere in controlling his mind. When the mind's activities are perfectly at rest, Atman manifests itself. Now, in the second part, regarding roadmap of the mutt, while visiting the new mutt's premises, which were taken on rent in 1898, at that time it was in the form of jungle. And while visiting that place, Swamiji shared his clear vision that 125 years ago, how much activities will be shaping in future and what will be uh, its rules and regulations, and how much will become the center of spiritual practice and culture of knowledge. Swamiji envisioned that from this place will spring forth such great ideals like harmony of knowledge, devotion, yoga, and karma, not only in India but the entire world. True seekers of spirituality from across the world will, in course of time, assemble at this center. How true is Swamiji's forecast that we see now within 125 years? Now, Swamiji defines how this will be done in very minutely. Swamiji has rolled down the entire path with superb clarity and utmost details described as under. He wanted to begin with Annasatra, a feeding home along with a home of service, particularly to serve the poor, sick, and downtrodden. These actions would not simply as charity, but with spirit of serving Lord, that is Shiv Bhave Jeev Seva. This gradually purify the aspirants' minds and ultimately lead to manifestation of Sattvika Bhav, which is pure and unselfish. Swamiji firmly believed that it is unattached fruits of such service if one has a passionate longing to go beyond all selfish desires, and then this good work of service to others will surely break one's bondages and leads to manifestation of ultimate divinity. The aspirants themselves have to manage the food and funds by begging house to house. This would also inspire and encourage the people from society at large to come forward and support such noble cause. With such generosity, eventually there will be hundreds of such centers all over the world. So this is the first step of feeding home and home of service. After completion of 5 years of training in such home of feeding and home of service, aspirants will be allowed to join Temple of Learning for another round of 5 years. Only after completing such training for 10 years, brahmacharis will be allowed to enter the life of sannyasa. This would be through initiation process, which will be offered by superior Swamijis. Thus, Swamiji emphasized the phases of evolution among such aspirants, that it will be through harmonizing: 1, gift of food and service; 2, gift of learning; and the third, gift of knowledge at this mutt.
people of all creed and caste and sects, that is from Brahmins to Chandals, would come here and find their respective ideals manifested. Thus, the mutt will prove the truth of pure Advaitism in practical life. Here, apart from attaining personal liberation by means of the realization of Advaita, one would also contribute towards liberating the whole universe before one leaves his body. Then only one establishes into eternal truth and bliss. This indeed is practical Vedanta as affirmed by Swamiji. Yes. Now, last part, now this another aspect of Swamiji explains what is nescience, that is delusion, ignorance or Maya. Swamiji says that Brahman is one, but is at the same time appearing to us as many on the relative plane. Name and form are at the root of such relativity. By giving example of a jar, Swamiji says that what one finds when the name and form are abstracted or removed from that jar. Only earth remains, which is its essence. Similarly, because of delusion, one thinks of variety and sees different names and forms like a jar, a cloth, a monastery, my wife, my children, my body, my mind, etc. The entire phenomenal world depends on this nescience, that is Maya, which obstructs knowledge and which has in reality no real existence. By giving another example of seeing rope as a snake, Swamiji says that name and forms appear as delusion are in true sense turn out to be unreal. Only the Brahman, the eternal existence, proves to be the only reality. The moment one recognize or identify this, the nascent, the Maya immediately vanishes. Explaining further, Swamiji says that conclusion of Vedanta is that the whole universe, its creation, its maintenance and its dissolution has been superimposed on Brahman appearing like a juggler's trick. However, it has not created or caused any aberration on Brahman from its real nature. Brahman can be realized as vividly as fruit on the palm. And tasting the reality of that Brahman is nothing like a dumb man tasting something very nice, but has no power to express his feelings. Now, the last part about Udbodhan, a fortnightly magazine which started publishing in 1899 by Swami Trigunatita under the directions of Swami Vivekananda. Swamiji wanted this publication for spreading Sri Thakur's teachings among the general public in every street and lane, not only of Calcutta, but in the entire world. Swamiji believed that we must explain to common man in simple words the highest ideals of the Vedas and the Vedanta. Through imparting moral principles, good behavior, and education, we must make even Chandals to come up to the level of Brahman by awakening everyone, young and old, men and women. Swamiji emphasized to share and publish only positive ideas and never hate
anybody because he believed negative thoughts weaken man. Giving example of Sri Ramakrishna that he never destroyed an individual man's special inclinations. Instead, Thakur promoted Jato Mata Tato Patha. Sri Thakur gave words of hope and encouragement with harmony even to the most degraded persons and lifted them up. Swamiji was very pleased by the efforts put up by Swami Trigunatita. He was very confident that when any of his sannyasi brothers takes up any work for the benefit of humanity, they will give up their everything. Like Trigunatita, they will even be ready to give up their spiritual practice, their meditation, and everything to carry out Swamiji's orders. It is not a small sacrifice, but Swamiji endorses that such unselfish work for the betterment of society at large is by no means inferior to devotional practices, but it is in true sense the roadmap to attaining the highest manifestation of divinity. Pranam. Okay, very good. Very good. It's a big one. It was a big portion, but you have done reasonably good. So now we can start questions. Yes, sir. Yes, Maharaj. Yes. So just a minute, मैं अपना मोबाइल फोन को जरा सेट कर लूं. Oh, बस let it. नहीं, बैठो बैठना हो तो हो आराम से. जी. हाँ, अच्छा. अब हमारा क्वेश्चंस में Yes. शिवानी शर्मा, आर यू रेडी? जी महाराज. हाँ भाई, तुम्हारे क्वेश्चंस ले लो. एक मिनट महाराज जी. 2 क्वेश्चंस है तुम्हारे ना? हाँ जी, 2 क्वेश्चंस है. क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 171. In matters physical, mental and spiritual, in everything we must give men positive ideas and never hate anybody. My question is, it takes quite a long time to improve. So sometimes one cannot afford to wait. What we can do then? What do you mean by affording to wait? यानी you are giving children are there, तुम कहो बच्चों को कहो कि बेटा तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, तुम चिंता मत करो, तुमको मार्क्स कम आए हैं, अगली बार ज्यादा मार्क्स आएंगे, पढ़ाई करना खूब अच्छा रहेगा. ये तो हुआ पॉजिटिव आइडियाज. उनको ये नहीं कहना है कि तुम तो मूर्ख हो, तुम तो फेल हो जाते हो बार बार. ये नेगेटिव आइडियाज हैं. तो ये पॉजिटिव आइडियाज तो हमेशा देते जाते हैं. उसको क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट जो है वो तो टाइम लगेगा. तो यहाँ पे नेगेटिव आइडिया का प्रश्न उठता ही कहाँ है? ये तो द टाइम इज नथिंग टू डू विद टाइम. यहाँ तो नेगेटिव और पॉजिटिव आइडियाज के चॉइस का है. चॉइस नेगेटिव पॉजिटिव आइडियाज देते चले जाओ, चाहे कैसा भी हो. डेवलपमेंट तो हर एक का अपने आप होगा, धीरे धीरे होगा. सबका ही डेवलपमेंट टाइम से होता है. लेकिन उनको अगर सब बच्चों को कॉन्फिडेंस दे दिया जाए कि तुम महान हो, तुम महान हो सकते हो, तुम भी साइंटिस्ट हो सकते हो, बड़े बड़े हो सकते हो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे हो सकते हो, तो उनको ये अपने आप में उनको बूस्ट मिलेगा ना. इन दिस कॉन्टेक्स्ट. और तुम्हारा क्वेश्चन है क्या? यही ना, तुम्हारा जवाब हो गया? महाराज ये तो आपने स्टूडेंट्स का बताया ना. सपोज जो एम्प्लॉइज होते हैं, कई बार उनको पॉजिटिव देने के बाद भी अगर नई रिजल्ट्स हमें मिलते हैं और वो चाहिए होते हैं उसी वक्त. अब वो तो क्या करोगे तुम? मतलब समटाइम्स वी हैव टू टेक. इतना ही कह सकते हो कि अरे तुम में इतनी वो है, फिर भी तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो. इतना ही करोगे ना. तो तो ये थोड़ा तो सा करना ही पड़ेगा. आवाज नहीं आ रही है. ठहरो ठहरो. ठीक है महाराज. हाँ सतीश बोलो. हाँ सतीश कुछ बोल रहे थे? महाराज जी, महाराज उनको तो
जो जो डफर है उनको तो डांटना ही पड़ेगा ना कि तुम लोग डफर हो, नहीं लेकिन नहीं तुम्हारे लिए भी वो नहीं डांटना बोल पड़ेगा तुम्हें लेकिन ये तो कह सकते हो कि तुम डांटना पड़ेगा, लेकिन ये तो कहना पड़ेगा कि यार तुम कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, इससे भी अच्छा कर सकते हो, तुम्हें दोनों ही करना क्षमता है, पड़ेगा इतना तो मतलब, बताना पड़ेगा। नेगेटिव भी करना पड़ेगा, पॉजिटिव दोनों ही करने पड़ेंगे उनके साथ। दोनों करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पे स्वामी जी बार बार पॉजिटिव बात कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव बहुत हो गया। जी हम्म, वेरी राइट। यानी नेगेटिव से ये हो गया है कि अब हिंदू भारतवासी समझने लग गए थे कि हम किसी काम के नहीं है। ये सिचुएशन स्वामी जी ने सारे भारत में देखी, जी जी इसलिए उन्होंने कहा था कि ये जी क्या महाराज, वो कुछ हो गया। ठीक है महाराज। जी महाराज। हाँ महाराज जी मेरा एक सवाल है। हाँ यस महाराज जी, इसके अंदर हम जो लोअर क्लास के यानी छोटे लोग जो काम करने आते हैं, उन वो जो काम करते हैं उसके बाद भी हम यदि उन्हें कहें तुम तो इससे अच्छा काम कर सकते हो, डेफिनेटली हाँ इट्स अ वेरी पॉजिटिव आइडिया दैट वी गिव देम, बट इट इज हाँ ऑन द अदर एंड वी आर मेकिंग देम फुल पैराडाइज। वो गधों में अक्ल नहीं है और हम कहे जा रहे हैं अरे तू तो बहुत मान बन जाएगा, तू बहुत अच्छा काम करे जा। तो ये कैसे संभव हो सकता है? अरे हम इसके अलावा भी हम हमेशा फूल्स पैराडाइज, वो भी हो, ये भी फूल्स पैराडाइज है, और अभी हम जो रह रहे हैं उनको दे रहे हैं विचार, वो भी फूल्स पैराडाइज। वो मेरा वो कहना। तुम जैसा उसको कहोगे उसके अनुसार अपनी कल्पना करेगा वो। अच्छा जी। हाँ, सो सो वी शुड गिव हिम ऑलवेज ए पॉजिटिव थिंकिंग कि बेटा तू करेगा अब कल। ऐसा है कि ये प्रिंसिपल है, जनरल प्रिंसिपल है। ओके अब लेकिन जब काम के अंदर आपको कभी डांटना पड़ेगा, हाँ अरे तू तो अच्छा कर सकता था, इससे क्यों किया। राइट। तो जी जी इसमें तो यही बात हुई ना कि तू यस अच्छा कर सकता था, तो उसको हाँ पॉजिटिव आइडिया हो गया। या वेरी राइट। बहुत बहुत सही हाँ, महाराज जी, बहुत सही उसके बताया। बाद में डांट भी चढ़ेगी उसको। हाँ बस राइट जी महाराज। यानी माँ जो है, माँ हाँ बच्चे को एनकरेज करती है, लेकिन वो गलती करता है तो चांटा भी लगाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चांटा लगाना भी यही कहने का है, मतलब है कि तू तो इससे अच्छा कर सकता था, ऐसा खराब क्यों कर। जी राइट जी महाराज जी। अच्छा, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। हाँ, next question, Maharaj. Page number 154. A greater manifestation of the soul takes place through education and culture, through concentration and meditation, above all, through sacrifice. So, please explain with an example how sacrifice is responsible for the manifestation of the soul. त्याग 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 जिसे शब्द बोलते हैं, त्यागे ने के अमृत तत्व किस तरह का त्याग, महाराज, ये हाँ, पूछ यार रही हूँ। देखो देखो, फंडामेंटल बेसिकली ठाकुर से कहा कि ठाकुर ने क्या किया, भगवान को प्राप्त करना है तो संसार को त्यागना पड़ेगा। ये तो पूरी ऊंची ऊंची बात कर रहा हूँ। और एक हाथ पड़ा है, दूसरा हाथ उसके ऊपर है, तो ऊपर वाला हाथ हटाना पड़ेगा नीचे वाली चीज लेने को। तो ये त्याग जो है अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का होता है। अगर सेठ है तो उसको थोड़ा धन त्याग करना पड़ेगा, उसको धन की आसक्ति को त्याग करना पड़ेगा। त्याग आसक्ति का भी हो सकता है, ठीक ठीक आसक्ति का त्याग कर सकता है। एक गृहस्थ है तो उसको अनासक्ति होना पड़ेगी, उसको मन से त्याग करना पड़ेगा। और जो सन्यासी है तो वह बाहर का भी त्याग करता है, अंदर का भी त्याग करता है। नचिकेता ने क्या है, नचिकेता को यमराज ने प्रलोभन दिए, नचिकेता ने प्रलोभनों को त्याग दिया। तो जो सच पूछा जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से जो मिथ्या है, अनरियल है, उसको त्याग करना है। और बाहरी दृष्टि से जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार आपको जो जो बात आपके जीवन में प्रगति में बाधाएं हैं उनको त्याग करना। क्या हुआ तुम्हारे क्वेश्चन कुछ? हाँ, महाराज, मेरे केस में आप कुछ बता पाएंगे, त्याग मुझे क्या करना चाहिए? इंडिविजुअली महाराज ऐसा ऐसा है, तुमने तो संसार में तो तुम पढ़े नहीं हो। जी। तो दो बातें हैं, एक तो ये है कि तुम्हारी आसक्तियों को त्याग करो, इस जिस परिस्थिति में है उसको परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन जैसा हम लोग रहते हैं, तो हम लोग एक आश्रम में रह रहे हैं, लेकिन हम अनासक्त होकर रह रहे हैं, हमको तो सन्यासी हैं। तो अपने भाव ये अपने ऊपर ये आरोपित करो भाव कि तुम सन्यासिनी हो, भले गेरुआ नहीं पहना लेकिन सन्यासिनी हो। तो उसमें संसार से मेरे को क्या लेना देना, मेरे को बंधन क्यों संन्यास संसार का।
और वो अगर कोई छोटी मोटी चीजें, वस्तुओं की चीजें को ज्यादा इम्पोर्टेंट होता नहीं है, यानी बाहरी चीजें। अब आप माता के साथ में है, अपने परिवार के साथ में है, अपनी जिम्मेदारी कीजिए और उनके प्रति आसक्ति को त्याग। बस। जी, ठीक है, थैंक यू ठाकुर महाराज। ठाकुर वचनामृत में उसको ठाकुर मिलेगा। ठाकुर बार बार बात करते हैं, गृहस्थ जो है वो मन से त्याग करेंगे, सन्यासी जो है वो बाहर से त्याग करेंगे। महाराज प्रणाम। कर्म फल भी त्याग करना है, सब सर्व कर्म फल त्याग। वो तो कर्म फल तो वो तो हाँ, कर्मयोग की बात आ गई है। ये मतलब वो त्याग कर्मयोग भी की, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो देखो ये कर्मयोग की बात आ गई। यहाँ पे जो बात हो रही है वो दूसरे प्रकार की बात हो रही है। हाँ, त्याग, अच्छा, सेक्रीफाइस की बात जो है यहाँ पे, या कर्म के हाँ, त्याग की, कर्म फल की त्याग या कर्म के आसक्ति की त्याग की यहाँ बात नहीं हो रही है। सच पूछा जाए हाँ, तो आध्यात्मिक जीवन में त्याग के बिना तो आध्यात्मिक जीवन होता ही होगा नहीं। ही नहीं। हम्म, तो उसके विस्तार में हम्म, जाने से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लंबा त्याग ही त्याग है, हम्म, सारा त्याग ही है। सारा तो त्याग। सन्यासी का त्याग, गृहस्थ का त्याग, बाहरी वस्तुओं का त्याग, अनासक्ति का, आसक्ति का त्याग, इस प्रकार से करते जाओ सभी चीज का कितना त्याग। सारा। ठीक है, थैंक यू महाराज एक प्रणाम। सवाल है कि जो आपने एक्सट्रीम त्याग बताया, और एक्सट्रीम त्याग के अंदर आप वहां तक गए कि सन्यासी का भी त्याग करना पड़ेगा, बट इन अ प्रैक्टिकल लाइफ, इन आवर रेगुलर रूटीन, और इवन फॉर द रामकृष्ण मठन मिशन, दैट त्याग इज नेवर एडवाइज्ड। एम आई करेक्ट? नहीं नहीं, वो मन का त्याग। थोड़ी चीजें तो आप कामनी कांचन है। नहीं, तो हम काम। सन्यासी जो, सुनो महाराज सुनो जी, मेरी बात, जी, ये कामनी कांचन त्याग जो है फंडामेंटल छोटे से में बता दिया बस। exactly, that is all. But और Maharaj ji, बा- now my question is only one, यानी इट्स अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन नाउ, एब्सोल्युटली। क्योंकि आपने जो बताया वो त्याग का अर्थ तो ये है कि हम जीते जी ये संसार को छोड़ रहे हैं, पर ये प्रैक्टिकल नहीं है, और प्रैक्टिकल करना भी जरूरी नहीं है। दैट इज व्हाट आई मीन टू से। इफ यू वांट टू कीप रामकृष्ण मठ एंड मिशन अलाइव, एम आई करेक्ट? वो ठीक है, चलने दो, तुम रामकृष्ण मिशन की चिंता मत करो। नहीं 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 महाराज, नो 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 महाराज, रामकृष्ण मिशन की चिंता मत करो। नो रामकृष्ण महाराज जी, मिशन को प्रत्येक, याद रखो, याद रखो, जी, जितने रामकृष्ण मिशन के सन्यासी हैं हाँ, वो सन्यास के समय सर्वस्व त्याग का व्रत लेते हैं। जी, और ये बाद में जितनी चीजें हैं ये प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट है। ओके, दैट्स राइट, दिस अ प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट। जी, राइट। महाराज उसके दो बेसिस हो सकते हैं, मतलब जैसे डिस्क्रिमिनेशन करना संसार स्वप्नवत है तो उससे त्याग होगा, या फिर भगवान की तरफ ही सब कुछ ओरिएंटेड होना चाहिए, भगवान की तरफ ही लगना है। दोनों हो सकता है। वो हाँ, जो भक्त हैं, दोनों ही है। जब भगवान भक्त के और भगवान में जाओगे तो सब चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। जी, हाँ, तो वो उसके थ्योरी में मत जाओ। ओके, राइट महाराज। अच्छा, भुवन मित्तल, हाँ, भुवन है तो है महाराज जी, है। अनम्यूट करना है उनको। नहीं, म्यूट है। तो फिर दूसरा लेवे सतीश विक। जी, हाँ, प्रणाम महाराज। जी, हाँ भाई। जी। महाराज फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो एवोल्यूशन के बारे में था, और सेकंड क्वेश्चन वाज अबाउट इवोल्यूशन। माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज पेज 154, व्हाट इज द इनफिलिंग ऑफ नेचर? डज इट मीन दैट ट्रांसफॉर्मेशन of one species into another takes place, maybe apparently through struggle and competition for survival, but in fact it is the outcome of a desire of nature to manifest itself in higher forms? तो ये तो जवाब है, तो वहां पे दिया गया, स्वामी जी ने जो कहा यही तो हुआ। प्रकृत्या यही पूरा तो है महाराज। इनफिलिंग ऑफ नेचर।
हाँ, ये प्रकृतिया पूरा जी। पातंजल योग सूत्र के 4th अध्याय के दूसरा सूत्र है। जी जी। वो क्या है, तो वो प्रकृति पूरा जो है, सूत्र लेकिन महाराज ये स्ट्रगल जो है, वर्ण भेद अस्तु प्रकृतिया स्फुरद। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सामने नहीं है, ये है। एक मिनट। जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पूरा, दूसरा। जी और तीसरा है निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत्। यानी जाति दूसरे में हुआ, ये क्या हुआ है, आप एक बाधा को, प्रकृति का प्रभाव आ रहा है हमारे जीवन की, एक बाधा को आप दूर कर दो तो उसमें हमारे भीतर की जो शक्ति है, हमारी पावर है, स्पिरिचुअलिटी है, उसमें प्रवाहित होगी और वो मैनिफेस्ट होगा। तो एक व्यक्ति है, उसको आप सन्यासियों के बीच में रख दीजिए तो उसके जो भोग की वृत्ति है धीरे धीरे कम हो जाएगी और उसके अंदर आध्यात्मिकता प्रकट हो जाएगी। और इसी व्यक्ति को अगर आप भोगवादियों के बीच में रख देंगे वे, तो वो उस दिशा में वो चला जाएगा। तो ये क्या है, ये प्रवाह हो रहा है। ये प्रवाह के कारण जिसको कहते हैं इनफिलिंग ऑफ नेचर, प्रकृति जो है वो पूर्ण कर रही है। जहां कहीं भी उसको मार्ग मिला, रास्ता मिला, खुल गया, उस तरफ वो चली गई। राइट महाराज। तुम्हारा जिसको, जी महाराज, तुम्हारा जिसको जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज है, तो जो उनकी डार्विन्स थ्योरी है कि वो उसमें स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, उसकी वजह से होता है। वे कह रहे हैं कि नहीं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की वजह से बाहरी लेवल पर तो अपेरेंटली तो नजर आता है, लेकिन इनफैक्ट इट इज इन फीलिंग ऑफ नेचर। वो उसकी जो हाई टेंडेंसीज बनती हैं और नेचर उसको फिल करती है। ठीक ठीक है महाराज। Sir, one minute. Maharaj, my question is very much here that the Darwin's theory of survival of the fittest. Here, Swami says the theory of survival of the fittest is applicable only to the species, but not to the human being. हाँ, यही तो बात है। हाँ, तो ह्यूमन बीइंग का सर्वाइव कैसे हुआ, ये अभी तो बोला ना, वही तो बोल रहे हैं। अभी तो बोला प्रकृति पूरा, ये प्रकृति करेगी और ये प्रकृति पूरा। ओके, अच्छा। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाला जो है वो जानवरों के लिए लागू होगा? हाँ, जानवरों को नहीं लगे। हाँ, ओके, नॉट फॉर द मैन। नो। ओके, दैट्स गुड। जी महाराज, प्रणाम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, इवोल्यूशन के बारे में पूछा था मैंने। स्वामी जी आल्सो यूज्ड टू say that evolution is followed by involution. Maharaj, does this mean a perfected human being degrades himself into lower species in course of time? Maharaj, जैसे वो जैसे प्रकृति में, जहाँ प्रकृति में तो ठीक है, आप उन्होंने कहा, मैंने आपके चैप्टर जो आपने किया था मैंने पढ़ लिया था, उसको थोड़ली नहीं पढ़ पाया। उसमें था कि पहले से नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो जो है वो एक्सप्रेस करती, मैनिफेस्ट करती है हायर एंड हायर फॉर्म्स में। तो इंक्लूजन वाज ऑलवेज देयर एंड इट मैनिफेस्ट, बट एट व्हाट लेवल महाराज? एट द लेवल ऑफ नेचर और एट द लेवल ऑफ सोल? क्योंकि सोल तो परफेक्ट है, वो इवोल्यूशन तो है नेचर के लेवल पे ही होगा। वो क्या है कि थोड़ा सा हम साधना करेंगे, जैसे कहा ना, यातना साधना कहा, या जो भी हम रहे, तो हमने जिस लेवल पे रहे, तो हमारे मन के लेवल पे जो बाधाएं हैं वो दूर हुई और आत्मा के भीतर का जो ज्ञान और प्रकाश है वो मैनिफेस्ट हुआ। तो ये लेवल मैनिफेस्टेशन जो हुआ है, ये किसके कारण हुआ है? इवोल्यूशन एट द मटेरियल लेवल, शरीर और मन के लेवल पे मैनिफेस्टेशन के कारण अंदर से प्रवेश हुआ है। तो इट इज नॉट एन इवोल्यूशन एट द सोल लेवल। सोल तो हमेशा वो है, परफेक्टेड है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, वो डिविनिटी विद्यमान है ही, उसको मैनिफेस्ट करना है बस।
सोल इज पोटेंशियल, और स्वामी सेकंड क्वेश्चन विवेकानंद का फंडामेंटल है। तो मतलब ये इसमें हमारे दो जीवन में जो डिविनिटी है उसको कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग या किसी भी प्रकार से मैनिफेस्ट करना है। तो ये जी दिस इज महाराज, फंडामेंटल और इसके मैनिफेस्टेशन जो है वह प्रकृति हाँ के भीतर उसमें सोल का है। जो महाराज जी, तो सवाल ये उठता है कि सोल तो शुरू से ही इस पृथ्वी पे रहा है, देयर इज नो टू ओपिनियन, लेकिन सोल के अंदर जो ये बने हैं जानवर और ये जो उनमें भी सोल था, यानी जो पृथ्वी पे जो पहला व्यक्ति आया वो सोल लेके ही आया है, लेकिन उसका डेवलपमेंट इवोल्यूशन जो हुआ है वो दो तरीके से हुआ। यदि जानवर का इवोल्यूशन हुआ है वो सर्वाइवल ऑफ द अरे फिटेस्ट ये के नाम सुनो से हुआ है। सुनो, ये अभी यहाँ पे पतंजलि की बात हो रही, सर्वाइवल फिटेस्ट की बात हो गई पहले क्वेश्चन में, यहाँ क्यों ला रहे हो उसको? ओके ओके जी। हाँ, नहीं, फिर वापस जा रहे हो उस पॉइंट के ऊपर। अच्छा मैं तो यहाँ पे हम यहाँ सिर्फ पे कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं हाँ कि वो इवोल्यूशन और इन्वोल्यूशन की बात कर रहे हैं। हाँ बराबर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक लेवल पे इवोल्यूशन होता है। बोलो सतीश, बोलो यहाँ पे तुम्हारा क्या कहना है? सतीश, जी तुम्हारा जी क्वेश्चन। महाराज मेरा ये कहना है कि सोल जो है, लेकिन उसको मैनिफेस्ट करने की क्या जरूरत है? पहले तो एक क्वेश्चन ये भी होता है कि वो ही में जो परफेक्ट है वो इम्परफेक्ट होके फिर इवॉल्व हो, उसकी क्या नीड है फर्स्ट तो? ये पातंजलि इसमें ये कहते हैं, यानी ये इसके ऊपर भी डिस्कशन किया है फिलोसोफर्स ने। पतंजलि योग सूत्र में भी इस अच्छा प्रकार जी का है कि सोल तो परफेक्ट है, सब समय परफेक्ट रहता है, लेकिन वो जानता नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ। इस जानने के राइट लिए राइट, उसको सारी प्रोसेस करनी पड़ती है, इवॉल्व करना पड़ता है, पुनः रिपीट करना पड़ता है माया के कारण उसको नहीं पता होता। उसको। जी वो जो भी हो, माया के बंधन के कारण, माया के आवरण के कारण जान नहीं पाता उसको। उसके लिए साधना करके उस आवरण को हटाना पड़ता है, तब कहता है, अरे मैं तो पहले से ही मुक्त था, पहले से ही क्या मैं बात। अज्ञान से हूँ। जी महाराज, महाराज एक अच्छा, क्वेश्चन और, तो जो जो अपनी परफेक्शन आती है तो उसके लिए उसको फुल एक्सपीरियंस सोल सोल को होगा तो ही परफेक्शन आएगी, उसकी फुल एवोल्यूशन अरे वो होगी अपने तो अपने आप उसको अपने आप आएगी, परफेक्शन होगा, आई। अपने आप उसको अनुभव होगा, तो एक्सपीरियंस नहीं, होगा। इसमें ये क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि जब नीति नीति करते हैं कि हम ये नहीं है ये नहीं है, तो उसमें आपको एवोल्यूशन तो हुई नहीं, आपने नीति नीति करके काट डाला उसको। नहीं तो हमको इवोल्यूशन जो ये काटा है वो इवोल्यूशन की चीज तो नहीं है, हमको तो वो तो बंधन का कारण है, उसको काटना ही है। और हम देखेंगे, जी अरे जी, काटते हुए तो हमारे ऊपर बाधा बनी हुई थी, राइट राइट जो राइट, ऑब्स्ट्रक्शन था समझ ये गया। हमारे ऊपर बाधा बना हुआ था। तो ये ठीक ठीक ठीक। वो विदेशियों लोगों का कहना है कि ये शरीर और मन का इवोल्यूशन है, लेकिन हमारा ये तो कहता है कि अल्टीमेटली ये शरीर और मन के आवरण को विवेक के द्वारा, नेति नेति के द्वारा काटना है, तब अपना स्वरूप प्रकट होगा। ओके राइट महाराज, समझ गया महाराज, समझ गया। महाराज जी, यहाँ पे 154 के थैंक यू लास्ट थ्री महाराज। लाइन 154 के लास्ट थ्री लाइन्स है, द अटेम्प्ट टू रिमूव इविल फ्रॉम द वर्ल्ड बाय किलिंग 1,000 इविल डूअर्स ओनली एड्स टू द इविल इन द वर्ल्ड। हाँ, ये क्या मीनिंग होगा इसका? तो क्या लाखों लोगों को मार के हम अपना पाप को बंद दूर करेंगे? हुआ है क्या कभी? कभी हुआ है ऐसा? अच्छा, तो इसको किस प्रकार से होगा वो आगे की एक लाइन लिखी है, क्या है इससे क्लियर हो जाओगे? बट इफ द पीपल कैन बी मेड to desist from the evil doing by means of spiritual instructions, there is no more evil in the world, right? तो जवाब मिल गया था तुमको, यहाँ पे दिया हुआ है क्लियरली। हाँ, महाराज जी, ये सवाल जवाब आ गया है इसके अंदर। अब एक हाँ तो प्रैक्टिकल, नहीं अब एक महाराज जी भेजे कल विश्वकर्मा पूजा। अभी नहीं, टाइम नहीं है, दो मिनट प्रोग्राम चल रहा है, अभी प्रोग्राम।
महाराज जी, अब एक सिर्फ प्रैक्टिकल सवाल है कि ये दुनिया में जितने युद्ध होते हैं, इसका मीनिंग ये है कि इविल टू कट इविल बाय डूइंग इविल डूअर्स एंड दैट कैन नेवर हेल्प इन द वर्ल्ड। तो यदि हमारे पूरे संसार के अंदर इस ब्रह्मांड में शांति लाना है, तो इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस। तो जो भी हो स्पेशल युद्ध के स्वराज नहीं होगा, बस ये बात कर रहे हैं, सीधी बात। ओके, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सतीश हो गया तुम्हारे क्वेश्चन? जी महाराज जी, हो गया। थैंक यू महाराज, प्रणाम महाराज। अच्छा, तुम्हारा दूसरा वो सब हो गया, जो भी एक हाँ, था हाँ वो जी। ठीक हो गया? हाँ जी। अच्छा, भुवन मित्तल नहीं आई? नहीं अभी तक वो महाराज मैं हूँ, लेकिन ड्राइव करना पड़ा था अभी, ध्वनि को लेके आना था, तो 2 मिनट में मैं ज्वाइन कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर शिवानी हो गया, दिलीप भाई हो गया, कौन हो गया? अच्छा, सतीश विग हो गया। जी जी। अच्छा, उसके बाद में अब आएगा रीता विश्वाल। रीता विश्वाल हाँ है रीता जी है। Yes, Swami ji. Pranam Swami ji. My first question is section 8, page 154. Last paragraph. While explaining theories of evolution, Swamiji speaks of Patanjali's theory as infilling of nature. Prakritya Purat. What is the meaning? You have explained a little bit, but I still do not follow. ऐसा है, प्रकृतिया पूरा, जहाँ पर कहीं पर जैसे पानी बाहर, उसमें अब जमीन के अंदर अब बाहर अपने नहर है, एक वाटर जा रहा है गंगा में, पानी गंगा में। अब पास में अगर आप एक दूसरा टैंक है, उसको भरना है, और टैंक बना दिया, और उसके बाद में जो बाधा है उसकी, गंगा और टैंक के बीच बाधा को तोड़ दो, तो क्या होगा? पानी अपने आप टैंक में भर जाएगा। यस यस, ठीक है, ये पूरा क्या है, प्रकृति पूरा। प्रकृति में शक्ति है, ज्ञान है। वो स्पीसीज में जो विभिन्न स्पीसीज हैं, उसमें थोड़ा सा उसको दरवाजा मिल गया, उसमें घुस जाता है, तो उसमें उसका जाति परिवर्तन हो गया। एक बकरी थी, वो शेर बन गई। एक मूर्ख व्यक्ति था, वो संत बन गया। क्यों? क्योंकि उसमें भीतर से ही फ्लो ऑफ नॉलेज है। उसकी बाधाएं हैं, हम दूर कर देते हैं साधना के द्वारा। तो उसके अंदर जो उसका स्ट्रेंथ है, ज्ञान है, व्यक्ति है, वो ऑटोमेटिकली उसमें फ्लो होने लगता है। इसको कहा तो जाति अंतर परिणाम। जाति का एक जाति से दूसरे में परिणाम जो होता है, कैसे होता है? प्रकृति के पूर्ण से। तो वहां और कुछ करना नहीं है। हम जो साधना करते हैं, इस साधना के द्वारा हमारे भीतर जो प्रकाश है, जहाँ ज्ञान है, उसका ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो दूर हो जाता है, और हमारे भीतर से ज्ञान ऑटोमेटिकली प्रकाश होता है। तो इसी प्रकार से जहाँ स्वामी कहते हैं कि जो इवोल्यूशन है, उसमें भी यही प्रकार का होता है कि जो परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जो ऑब्स्ट्रक्शन, पहली स्पीशीज का ऑब्स्ट्रक्शन दूर हो जाता है, तो दूसरी स्पीशीज आ जाती है। Yes, Swamiji, this happens even in animals. Yes. Swamiji says that this is the, according to वो उनका तो है स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस इत्यादि, लेकिन स्वामी जी कहते हैं नहीं, इवन दिस इज टेकिंग प्लेस इन एनिमल्स। जैसे एक एनिमल को अगर आप एक अच्छे स्थान पे रखेंगे, संतों के बीच में जानवर को रखेंगे, तो वो दूसरे प्रकार का डेवलप होगा ना।
Yes, yes, Swamiji, yes. आश्रम में गाय रहेगी वो और दूसरे एक गुजर के घर में रहेगी तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा. Yes, Swamiji, definitely. So that is the thing. Yes. So my second question, Swamiji. Thank you, Swamiji. Section 8, page 157, fifth para. Here, Swamiji tells the disciple that unless one has a good physique, one can never aspire to self-realization, and states that Sri Ramakrishna saying, one fails to attain realization if there be but a slight defect in the body. Does this mean that those born with bodily defects can never attain self-realization? What is the way out? ऐसा है कि there are body नहीं कुछ defect होगा तो that defect starts constantly obstructing. That is the reason. Yes, yes, yes. अब आपको पैर में वो है, आप पद्मासन में बैठ नहीं सकते, सुखासन में बैठ नहीं सकते और सीधे बैठने में दिक्कत होती है, कमर में दर्द हो रहा है तो क्या होगा? अब वो शारदानंद जी को स्क्विंट था लेकिन ठाकुर की कृपा से वो स्क्विंट होते हुए भी वो उच्च कोटि का संत बन गए. So sometimes they squint their physical bodies etc. If there are a lot of defects, major defects are there, they become hindrance. तो ये तो ठाकुर ने भी कहा है और उसके लिए उसको we have to see to it that there does not become a hindrance. अरे साधना तो हम करेंगे नहीं, कहेंगे हमारे डिफेक्ट हैं. अरे जो लोग साधना करते हैं ना वो डिफेक्ट की चिंता नहीं करते. Yes, yes, that is correct, Swamiji. Yeah, that is true. लंगड़ाते भी हैं लेकिन संत बन जाते हैं उच्च कोटि के. Yes, Swamiji. तो Even ये people I know. जनरल बात कह दी है लेकिन पुरुषार्थ के सामने ये सब ठीक ठाक हो जाता है, उसकी चिंता मत करो. Yes. अष्टावक्र में देखते हैं महाराज, और ये सूरदास जी के जीवन में देखते हैं और अष्टावक्र के जीवन में देखते हैं. हाँ कितने लोग हैं. सूरदास के कितना ये हो सूरदास तो संत अंधे थे और अष्टावक्र तो 8 वक्र थे. 8 वक्र थे. My third question, Swamiji. Section 9, page 163, last para se continue होके page 164. Here Swamiji says, nescience has no absolute reality. What does nescience mean? From where does nescience come? Nescience एक प्रकार से कहते हैं अविद्या, ignorance. अविद्या, yes. Ignorance. So knowledge है, absence of knowledge. So absence of knowledge जैसी कोई चीज हो, either negative something is there. Yes. How can it have an existence? It cannot have an existence. Basically no existence. Yes. Yes, it is. Yes. Listen. देखो, I become dirty. Lekin when I become dirty, a dirt comes in my body. Yes. So that I will have to remove. Yes. Lekin when I am ignorant, so यहाँ पे I don't have ignorance. So it is the absence of ignorance. Yes. There is nothing added something. Yes, Swamiji. When you do knowledge, when the knowledge comes, we say that ignorance is gone. Yes. Actually, there is nothing like a presence of ignorance. It was a बातचीत की बात. Thank you, Swamiji. Now I am very clear. अच्छा, अब कौन बचा है? भुवन मित्तल, क्या हुआ? भुवन मित्तल है कि नहीं? Yes. आ जाओ. जी. 1 minute, I'm just opening. Okay. Page 148, first question. Swamiji mentions that a man is great among his fellows in proportion as he can sacrifice for the sake of others. How does sacrifice make us great? What sacrifice? Your fundamental, did you join in the beginning or not?
हाँ जी, मैंने की थी। So we have discussed in शिवानी detail का क्वेश्चन था। sacrifice. हाँ जी, Sacrifice is the fundamental of spiritual life. हाँ, त्याग तो करना फंडामेंटल। हाँ, त्याग के बिना कुछ हो नहीं सकता। इसमें कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं जी, तब- नहीं जी। तो what sacrifice can we do other than ईश्वर अर्पित कर्म? अरे सेक्रीफाइस यानी आपके पास, जैसे सन्यासी क्या करता है, तो त्याग सब कुछ कर त्याग देता है। तो मन से त्याग करो ना, अपनी आसक्ति को त्याग करो। अपने पास 10-20 तुमने बहुत सारे कपड़े हैं तो इतने कपड़ों की जरूरत नहीं, कुछ कम कर, कपड़े कम करो। ये फिजिकल त्याग हुआ। मानसिक त्याग हुआ, आसक्ति को त्याग करो। देखोगे कितनी चीजें हम छोड़ सकते हैं। हमारी डिजायर्स हैं, बेसिकली हमारी डिजायर्स को त्याग करना है। हाँ जी, The whole of spiritual life is based on nothing but sanya त्याग, external त्याग और internal त्याग। हाँ जी, Okay. समझ गई। So next question, page 150. The conversation lasted till it was past midnight, and the disciple found his lodging locked. So he had to pass the night out of doors. So the disciple sacrificed sleep for listening to Swamiji. So sometimes I also stay awake like until 2 a.m. to read mostly Swamiji's works. So is that kind of a sacrifice all right as long as we get 6 hours of sleep? You see, actually, if you are a sadhak, you must have a fixed routine. Strictly follow the fixed routine. Once in a while, sometimes you are reading a nicely thing, you are reading and it becomes 2 o'clock. There is a different thing. Ach. But strictly, you must follow a strict routine. Very important. Don't make an excuse. Yeah, Swamiji has written that the devotee has slept up to 2 hours, up 2 o'clock. So you make it, I will also do it. Not this. You must have fixed routine. Follow it. महाराज जी, यहाँ पे आपने बहुत सही बताया और स्वामी जी ने भी यही कहा है कि वी शुड हैव ए फिक्स रूटीन। लेकिन यदि हमको रात को नींद नहीं आ रही है तो हमने यदि ये कुछ लगा लिया है स्वामी जी के वर्क और यदि वो सुनते हैं 2-3 घंटे, तो इसमें गलती क्या होगी? वो उसके और तुमको नींद नहीं आएगी। हाँ, नहीं आएगी डेफिनेटली। सो वी आर मेकिंग तो ये आपका रूटीन बन जाएगा। महाराज जी, सवाल ये है कि दिस बेटर रूटीन वर्क रादर देन थिंकिंग समथिंग। थिंकिंग समथिंग का बात नहीं कह रहा, तुम उसको स्वामी जी का सुनो मत, बैठ के जप करो। तो अच्छा, जप करने से क्या होगा कि तुम्हारे को नींद आ जाएगी। राइट। और कुछ सुनने की कोशिश करोगे ना तो नींद नहीं आएगी। अच्छा। Swami ji, can I ask a question here? It's related. Yes. Swami ji, sometimes one is physically dog tired. The mind is very alert. At these moments, one does japa lying down, but one feels very guilty. What is No, solution? that's all right. You can don't have a japamala in your hand. Yes. Yeah. But mentally you do japa, you can do the counting in the fingers, but don't have lying down, you can do japa, no difficulty. Without counting, Swamiji, because one doesn't need to count, does one? No, you need not count. You need not count. Thank you, sir. Thank you. Okay, so Swamiji, it's not a regular basis, but like once in a while, you can't shut down your mind, so you can't really sleep. Once in a while it happens. So in those cases, even it's difficult to do jap also. I think the only thing that a person that works for me at that time is either listening to music or even singing myself or doing chanting myself. That brings the There mind. is no difficulty. You can listen to bhajan, you can chanting yourself, you bhajing yourself, no difficulty. हाँ जी, Yeah. ठीक है जी। So then, coming to the next question, page 155, last paragraph, Swamiji says, all of you
to explain to other people the liberal ideas of Sri Ramakrishna. So should we also explain to people the liberal ideas of Sri Ramakrishna? If there are some people who can listen, who are ready to listen to you. Yes. Sometimes my daughter does not want me to read Swamiji's works to her, but if I still read for say 15 to 20 minutes, she does listen intently. So should I make it a regular practice to read to her, because it's more fun to read with somebody else, you get more spiritual joy out of it. You see, that is just a practical thing. You see, whatever is practical, no difficulty about it. Yes, Maharaj. But definitely, teenagers will benefit from reading Swamiji's works. They may not read every other spiritual book, for example, but they will definitely get inspired from Swamiji's works. Can we Yes. say that? Okay. And then the next question, page 156, third paragraph. Swamiji says that you must liberate the whole universe before you leave this body. Then only you will be established in the eternal truth. So is that an exaggerated statement for us, so that we Yes. expand our heart to care for other salvation? Yeah, that you think of the others also. That is the idea. Ji. Theek. So next question, page 160. Swamiji says the Atman cannot be attained by the weak. What all is involved to make us fit to attain the Atman? Swamiji does mention all of these: strong physique, reasoning, intellectual understanding, sacrifice, control of mind, teaching others liberal ideas of Sri Ramakrishna, unselfish work, first gifting food, then Shastra study, then knowledge. So values have already been given. Okay, Maharaj. In all there any more? Shastras, all books, you get all these values. Hanji. So then last question, Swami Trigunatitaranji worshipped Sri Ramakrishna before beginning Udbodhan work. Can we mentally worship Sri Ramakrishna before every work, subtask, or even while taking a short break from work, and even if we are doing some non-cognitive tasks such as exercise? Yes, you can always remember Sri Ram. And okay. महाराज जी मेरा एक प्रश्न था। मेरा एक प्रश्न था महाराज जी, प्रणाम करता हूँ। आशीष अग्रवाल बोल रहा हूँ महाराज। बोलो महाराज। मैं कल स्वामी ब्रह्मानंद जी का प्रवचन सुन रहा था साधक साधना और सिद्धि पे, तो वो बोल रहे थे कि एक साधक को ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे और मैक्सिमम 5 आवर्स का स्लीप जरूरी है। उससे ज्यादा वो सोता है तो वो शरीर उससे खराब होता है, यानी दैट इज नॉट गुड फॉर अ साधक टू स्लीप फॉर मोर देन 5 आवर्स अ डे। लेकिन अब बहुत सारी भ्रांतियां नींद को लेकर मेडिकल साइंस में बोलते कि 8 घंटे सोना चाहिए। तो व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? जो आपको ठीक लगे करो, इसमें कोई नियम नहीं है, फिक्स रूल नहीं है। ये उच्च कोटि के साधकों के लिए है। ठीक है महाराज, ठीक है। महाराज इसके बारे में रीता गुस्वाल, उसके महाराज बाद एक और पूछ सकती हूँ? सतीश विग हुआ। अच्छा पूछो, जल्दी पूछो। हाँ महाराज, जो ये स्लीपिंग के बारे में था ना, तो एक्चुअली हमारे गुरु महाराज जी भी 2 बजे सोया करते थे, क्योंकि वो काफी उनका बिजी स्केड्यूल रहता था। तो वो तो मेरा ये सवाल ये था कि if we have a routine and we still try to stick to it, then can that routine be a slightly out of the ordinary routine? Is that fine? Every individual has a routine. You have your individual routine. Yes. Only you have to see to it that it must prove to be physically वो uncomfortable, physically वो आपको वो unhealthy नहीं होना चाहिए। ठीक। हाँ जी। अच्छा, इतु घोष ने कहा था कि वो बाद में आएगी। She will not be able to join early. That's why we have taken it in the end.
No, she is not there. सर मैं संजय सतीश अपना संजय संजय जी महाराज। जरा इतु घोष को फोन करके पता लगा सकते हो? अच्छा ठीक है। महाराज जी इन्फॉर्म किया था, उसको इन्फॉर्म किया था कि मैं 10 सवा 10 बजे ज्वाइन करूंगी, तो इसलिए मैंने उसको लास्ट में लिया था। अभी सवा 10 तो बज रही है, मैंने कहा भी था, उसको इन्फॉर्म भी किया था कि विल टेक यू इन द एंड। यस महाराज जी, इन द मीन टाइम मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? करिए प्रश्न, कहाँ करो कर। Yes. महाराज जी, I understand Swamiji was a very good lawyer. He could have done better work in the field of lawyer. Forget about all these things. Swamiji has never spoken about the law or legality. How it has come in the mind of the Swamiji to think about spirituality and this type of all work कि उद्बोधन हमको चलाना पड़ेगा, हमको घर घर जाना पड़ेगा और ये काम करना पड़ेगा देश के लिए। तो मेरा ये जानना था कि इससे गॉड गिफ्ट गिवन बाय ठाकुर। देखो 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 सुनो जी, पहला स्वामी विवेकानंद अत्यंत बुद्धिमान थे, ये मानते हाँ, हो? बिल्कुल बिल्कुल। वो पढ़े लिखे भी थे, ग्रेजुएट थे। उसके लॉयर बाद स्वामी ठाकुर के से उनको आध्यात्मिक इंस्ट्रक्शन मिले थे जी, और उसके बाद में ये भी मिला था कि तुमको देश के लिए, लोगों गरीबों के लिए तुमको काम करना पड़ेगा। हाँ, और उसके बारे में दोनों ने जनरल इंस्ट्रक्शन जो बातचीत में आते हैं, जनरल आध्यात्मिक इंस्ट्रक्शन दिए। जी, उसके बाद स्वामी विवेकानंद सारे भारत में भ्रमण किया था। हाँ, और कितने प्रकार के लोगों से मिले थे। हाँ, हाँ, और बार बार भारत का भ्रमण, भारत का उत्थान करना है, ये बात तुम्हारे मन में चल रही थी जी। और उसके बाद कन्याकुमारी में बैठकर उन्होंने आई हिट अपॉन ए प्लान, वहां पे उन्होंने बैठकर एक प्लान किया। खुद ही बोल रहे हैं कि मैंने प्लान किया, कैसे प्लान करा वो सारा उन्होंने बता दिया। जी जी जी। ये सारी बातें तो है, सारी योजना तो जब सारा का सारा तो हो गया, क्या प्रश्न चाहिए? नहीं नहीं, मेरा सिर्फ ये पूछना है कि एक व्यक्ति एक लाइन के अंदर एक्सपर्ट है, अच्छा उस लाइन को तो वो भूल गए बिल्कुल, तो ये जो इनके दिमाग में दूसरी बात आई, ये ठाकुर की माँ की कृपा से आई क्या? अरे कृपा नहीं, ये बता दिया मैंने, इतने कारण बता दिए तुमको। स्वामी ठाकुर ने उनको इंस्ट्रक्शन दी। हाँ, लोगों से मिलते थे, सारे भारत का भ्रमण किया, पता नहीं कितने लोगों से मिले, अनेक इनपुट आए हैं, बहुत सारी बातें वो समझ में आई है उनको। भारत में वो कन्याकुमारी बैठ के उनको प्लान आया ना, उसके पहले तो वो सोच रहे थे कि मैं जाके हिमालय में तपस्या करूंगा। जी जी जी। ठाकुर ने तो केवल कितने ये कहा था कि तेरा हार्ट, तेरे को काम करना पड़ेगा, इतना ही कहा था बस। अच्छा, ओके, जी जी महाराज जी। हो गया सबका? ये हो गया, कोई नहीं है। इतु घोष नहीं आया। ईटू अभी नहीं ज्वाइन कर पाए, फोन भी नहीं उठा पाए, तो हम लोग अगली बार तो फिर बंद करें, फिर हो गया, खत्म हुआ। महाराज मेरा है छोटा एक सवाल मेरा और ले लीजिए। निवेदिता। हाँ बोलो। वो मेरा पहला प्रश्न तो आंसर हो गया, प्रकृति अपूरक। दूसरा है प्रश्न, व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन द species evolution and the spiritual evolution? क्या, what is the correlation between species evolution and the spiritual evolution? You see, species evolution is up to man, up to the animal. हाँ एनिमल, अप टू मैन, ह्यूमन तक तो आता है, उसके बाद में स्पीशीज इवोल्यूशन का कोई प्रश्न नहीं उठता। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद में जो है वो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होता है। हाँ हाँ। उसके पहले तक एनिमल टाइप, उसमें स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का प्रश्न नहीं उठता। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, ओके। मतलब मैन के लिए स्पिरिचुअल और एनिमल के लिए स्पीशीज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन। अच्छा, मैं महाराज एक शेयर करना चाहती हूँ
जो वो विवेकानंद यूनिवर्सिटी में हम क्लास करते हैं, वहां पर स्वामी प्रेमानंद जी के साथ एक बार घूमते घूमते जा रहे थे और उन्होंने वही स्पॉट पर बताया था कि यहाँ पर एक बड़ा विश्वविद्यालय होगा जहाँ से ज्ञान चारों विश्व में फैलेगा। तो वो पूरा कोटेशन लिखा हुआ है वहीं पर अच्छा यूनिवर्सिटी में। हाँ अच्छा, ठीक है, वेरी जी। तो बस वो ईतू घोष का बहुत सारा था और उसने कहा था कि मैं बाद में आऊंगी, और इसलिए मैंने उसको शुरू में नहीं लिया। उसको मैंने इन्फॉर्म भी किया था कि बाद में आएंगे तो मैं तैयार। नहीं हुआ ना? ओके, नहीं तो ओम शांति। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। महाराज जी प्रणाम, महाराज जी प्रणाम। अच्छा, नमस्कार। क्या देवा